We were here on passes of warp on loom. So here the shuttle is inserted from one box to another box, leaving behind one peak of web. And then when the reed is moving forward, it is beating up the last peak. And in this way, beating up is taking place. And here it is beaten up to the fall of the cloth, which is imaginary point where actual fabric formation starts. And as the beat up is performed, means the fabric is formed, simultaneously tack up mechanism and let of motion are activating, they are coming in working, and it is taking up the cloth which is manufactured here, and the same amount of warp is released from here to maintain the equal and constant tension on all the warp threads throughout the length of the fabric. That we have already done. And then this also, the second diagram also I have explained here, how the motion is transmitted to different shafts. And there are two important shafts. One is crankshaft and another is bottom shaft. So how these crankshaft and bottom shaft are getting motion with the help of this motor. So on the motor, there is a motor pulley, which is connected with the help of belt to the machine pulley, and machine pulley is mounted on the crankshaft itself. So the crankshaft is getting motion directly from this motor pulley and machine pulley with the help of motor. And here two cranks are there. It is bent into cranks at two sides, and that's why this is known as crankshaft. And then this crankshaft is having a gear here on the crankshaft, which is connected with another gear on the bottom shaft. So motion from this gear to this gear is transmitted, and bottom shaft is getting motion from crankshaft. And because due to the number of teeth on this gear and this gear, the gear on the crankshaft is having half the number of teeth as the bottom shaft. We can say the gear on the bottom shaft is having double the number of teeth as compared to this crankshaft. तो जितना crankshaft का speed होगा, उसका half speed bottom shaft का होगा. इसलिए crankshaft के एक revolution में एक pick insert होता है. When crankshaft is completing its one revolution, crankshaft जब अपना एक revolution complete करती हैं, तो एक पिक इंसर्ट होता है लूम के ऊपर. तो बॉटम शाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में दो पिक इंसर्ट होंगे, क्योंकि बॉटम शाफ्ट का रिवॉल्यूशन स्पीड जो है क्रैंक शाफ्ट से हाफ हो जाता है ड्यू टू दिस रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन दीज टू गियर्स mounted on crankshaft and bottom shaft respectively. So in this way we have taken passage of warp on loom with the help of this diagram and motion transmitted to the different shafts, crankshaft and bottom shaft, with the help of motor. And sometimes for tapered shedding mechanisms, we are using an extra or auxiliary or additional shaft, which is named as tapered shaft. And the gear, the number of teeth on this gear and this gear will depend on how many tapetes we are using, how much speed we have to reduce. Accordingly, we are taking the number of teeth on this in these two shafts here. So sometimes there may be three shafts: crankshaft, bottom shaft, and tapered shaft. But most of the time, we are using only two shafts. One is crankshaft and another is bottom shaft. So all these different mechanisms like shedding, picking, beating, tack up, let off, all these are getting motion from either crankshaft or bottom shaft. Some are mounted on crankshaft, some are mounted on bottom shaft. That we will see when we will learn when we will study these different type of mechanisms, which mechanism is getting motion from crankshaft and which are getting motion from bottom shaft. After this, yes, in this diagram, I have tried to show you the 3D diagram of a shuttle loom, the important parts here, because in the previous diagram, we are taking the side view. This is weaver's beam, then backrest, then heel frame, then reed, then this fell of the cloth, then front rest, and then tack up roller, nip roller, and cloth roller. So in the side view, it is not very clear. That's why I have taken another diagram so that it will be more clear to you. So here it is the weaver's beam. Sorry, this is the weaver's beam. This is backside here. So this is weaver's beam, here written as warp beam, but this is weaver's beam. So weaver's beam is mounted at the bottom and back of the loom. This is back side of the loom. This is front side of the loom. जब आप देखेंगे weaver's beam
और क्लॉथ बीम एक ही लगभग पैरेलल माउंटेड है, और ये माउंटेड है बैक साइड में, तो क्लॉथ बीम माउंटेड है फ्रंट साइड में। यहाँ पर हम वार्प रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लॉथ को वाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे अनवाइंड हो रहा है वार्प वीवर्स बीम से, एंड वार्प इज मूविंग टूवर्ड्स द वीविंग एरिया। और यहाँ पर जो हो रहा है वीविंग होने के बाद आप यहाँ से देखेंगे, दिस इज फेल ऑफ द क्लॉथ। फेल ऑफ द क्लॉथ के बाद ये हमने इस तरह से दिखाया, इट मीन्स ये इंटरलेसमेंट हो चुका है वार्प एंड वेफ्ट का। तो ये जो क्लॉथ बन चुका है, वूवन फैब्रिक बन चुका है, उसको हम यहाँ पर क्लॉथ बीम के ऊपर वाइंड कर रहे हैं। So this is front part of the loom, this is back part of the loom. Now here, thousands of threads are wound on the weaver's beam as we have taken in the previous classes, and then they are guided by the backrest and coming parallel to the earth, parallel to the ground. तो ये सारे वार्प थ्रेड्स एक पैरेलल शीट के फॉर्म में, जितने भी थ्रेड्स इसमें होंगे, अगर 1000 थ्रेड्स है तो 1000 थ्रेड्स की एक पैरेलल शीट यहाँ पर आएगी। 2000 होंगे, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, ये सारे थ्रेड्स एक पैरेलल शीट फॉर्म में, और हर थ्रेड के बीच में इक्वल गैप होगा। तो ये थ्रेड्स यहाँ से अनवाइंड होकर के इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको लेकर के आएंगे। यहाँ पर हमने हिल फ्रेम्स को शो किया है। सो हिल फ्रेम्स भी विड्थ वाइज एक्सटेंड होती है। तो यहाँ हमने 2 हिल फ्रेम ले रखा, 1 and 2, ये हमने शेडिंग मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। तो हिल फ्रेम 1 and 2, you can see number of wires are there, number of hill wires are there in the hill number 1, and number of hill wires are there in the hill number 2, depending on total wires here. Okay, suppose we have 2000 ends here, and half the ends we are passing through hill number 1 and half through the hill number 2 for a particular design, then 1000 hill wires will be there in the first hill frame and 1000 will be there in the second hill frame. और अभी जो हिल फ्रेम लिफ्ट होगी वो वायर्स, वो एंड्स अप होंगे, और जो हिल फ्रेम डाउन जाएगी वो एंड्स जो उससे पास हो रहे हैं वो डाउन जाएंगे। तो हिल फ्रेम के मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हिल फ्रेम। कौन सी पर्टिकुलर, जब फर्स्ट पिक इंसर्ट हो रहा है तो कौन सी हिल्स को रेज करना है और कौन सी हिल्स को लोअर करना है, कौन सी को लिफ्ट करना है, कौन सी को लोअर करना है, दैट वी कैन कंट्रोल। तो जो हिल फ्रेम्स लिफ्ट होगी they will form the top layer, और जो hill frames lower होगी they will form the bottom layer, and the warp threads will be divided into 2 layers that is known as shade. So in this way shade is formed here. यहाँ पर आप देख रहे हैं shade दिखाया हुआ है। यहाँ एक पैरेलल शीट होगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ जैसे हिल फ्रेम के अंदर हिल फ्रेम अप और डाउन होगी, लिफ्ट एंड लोअर होगी, तो 2 लेयर्स बन जाएगी, और यहाँ पे शेड फॉर्म होगा इस प्लेस के ऊपर, एंड दिस इज नोन एज वीविंग एरिया। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा जस्ट आगे हमने यहाँ पर रीड दिखाया हुआ है। दिस इज अनदर पार्ट आफ्टर हिल फ्रेम। द वार्प थ्रेड्स आर पासिंग थ्रू रीड अकॉर्डिंग टू डेंटिंग ऑर्डर। हिल्ड वायर्स और रीड में जो डिफरेंस है, हिल्ड वायर्स की जो हाइट है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रीड। विड्थ दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जितना विड्थ इसका होगा, लूम की विड्थ पर डिपेंड करेगा, फैब्रिक की विड्थ पर डिपेंड करेगा कि कौन से विड्थ का फैब्रिक हम बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी विड्थ होगी। ठीक है। इसमें जो वायर्स हैं वो लूज होते हैं, हम वायर्स इसमें और ऐड कर सकते हैं, वायर्स कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। सपोज हमने कोई हिल फ्रेम यूज किया है जिसमें 1000 वायर्स हैं, और हमें नए फैब्रिक के लिए यूज करना है जिसमें हमें 1200 वायर्स चाहिए, तो इसी हिल फ्रेम के अंदर हम 200 वायर्स और ऐड करके उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन रीड के वायर्स फिक्स होते हैं, तो रीड हर पर्टिकुलर फैब्रिक के लिए एक स्पेसिफिक रीड होगी, उसी को हम यूज कर सकते हैं। इसमें वायर्स ऐड या कम नहीं कर सकते हम इसमें, ना तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं वायर्स को, ना घटा सकते हैं। वायर्स आर फिक्स्ड इन रीड, एंड द गैप बिटवीन 2 वायर्स इज नोन एज डेंट। यहाँ पर एक हिल्ड फ्रेम के एक हिल्ड वायर से एक एंड पास होता है, लेकिन रीड के 2 वायर्स के बीच में एक एंड पास कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। Any number of ends can be passed through the dent depending on the gap between the dents and count of the threads, diameter of the threads. उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा diameter of the threads, यानी कि कितना मोटा है थ्रेड, और गैप कितना है 2 वायर्स के बीच में, डेंट के अंदर जो गैप है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग, and according to view also we decide how many ends will pass through one dent. Generally we are using regular denting orders. Regular means if 2 is there, then हर dent से 2 पास करेंगे। If 3 ends per dent is there, then हर dent से 3 पास करेंगे। अगर 4 ends per dent is there,
तो हर एंड से 4 एंड्स पास करेंगे। देन रीड के बाद यहाँ पर हमने शटल दिखाया हुआ है, शटल के अंदर एक पर्न है, तो शटल इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ये पूरा विड्थ वाइज ट्रेवल करती हैं और यहाँ पर एक पिक को छोड़ते हुए जाती है। जब रीड फॉरवर्ड मूव करेगी तब तक शटल दूसरे बॉक्स में पहुंच चुकी है, फिर रीड फॉरवर्ड मूव करेगी तो ये जो यहाँ पर जो वेफ्ट होगा वो इसके पैसेज में आएगा, तो ये इसको पुश करते हुए यहाँ तक लेकर के आएगी, जिसको हम फेल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरलेसमेंट हो चुका है, यानी कि फैब्रिक बन चुका है। तो ये जो फ्रंट रेस्ट है यहाँ पर, ये भी विड्थ वाइज एक्सटेंड है, ये फ्रंट रेस्ट या फ्रंट रोलर जो है वो इसको गाइड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स टेकअप मैकेनिज्म, और टेकअप मैकेनिज्म में लास्ट में होगा क्लॉथ रोलर या क्लॉथ बीम, जिसके ऊपर ये फैब्रिक वाइंड हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस 3D डायग्राम की लूम के ऊपर जो वार्प का जो पैसेज हैं और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकल्स आर नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑफलाइन क्लास, दिस इज ऑनलाइन क्लास। तो अभी आप ऑफलाइन में होते तो आपको हम लूम पे सब कुछ दिखा देते तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाता, आपको समझ में आ जाता। लेकिन अभी हम इस तरह के डिफरेंट डायग्राम्स लेकर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उस डायग्राम में क्योंकि हिल फ्रेम केवल एक वायर दिखाया हुआ था, यहाँ पे हिल फ्रेम पूरा विड्थ वाइज एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है। रीड इस तरह से होता है और ये क्लॉथ बीम इस तरह से होता है, व्यूवर्स बीम इस तरह से दिखाई देता है। ये सारा का सारा इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है। क्लास मोस्ट प्रोबेबली एंड हो जाएगी 5-6 मिनट के अंदर, तो स्टिल वी विल हैव टाइम। नेक्स्ट क्लास किसका है पार्थ? 11 बजे? 11 तो नहीं है। नहीं है ना, तो हम एक क्लास इसके बाद वापस कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं उसके लिए वापस आपको लिंक भेज दूंगा। 5 या 10 मिनट का ब्रेक कर लेंगे और मैं वापस लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। या इतना काफी है, जो कर रहे हैं उतना काफी है। डिपेंड आप लोग कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना लर्न कर सकते हैं। मुझे बहुत जल्दी नहीं है कि मैं अपन जल्दी करें इसको। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, मेन पर्पस ये है। ये फिर एक और डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं लूम को आपको। लूम लगभग इस तरह से दिखता है, ये शटल लूम दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो हिल फ्रेम्स दिखाई दे रही हैं। ये क्लॉथ बीम है जिसके ऊपर हम क्लॉथ को वाइंड कर रहे हैं। इसकी बैक साइड नहीं दिखाई दे रही, वीवर्स बीम वगैरह पीछे की तरफ है, ये केवल फ्रंट साइड दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखें, ये फ्रंट प्लेट है जिसको हम फ्रंट रेस्ट बोलते हैं। फ्रंट रेस्ट से फैब्रिक गाइड होकर के क्लॉथ बीम के ऊपर वाइंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेकअप मैकेनिज्म। और यहाँ पे आप देखें शटल दिखाया हुआ है, जस्ट दिखाने के लिए ऊपर रखा हुआ है ताकि आप देख सके शटल किस तरह से होता है। और ये इंसर्ट हो रहा है यहाँ से, जब शेड फॉर्म होगा तो अंदर की तरफ शेड के बीच में से ये इंसर्ट होगा। यहाँ पर हमने दिखाया है ये हिल फ्रेम से पीछे, और यहाँ पर स्ले होगा, ये स्ले का पार्ट है, जो वुडन दिख रहा है ये स्ले का पार्ट है। और इसके अंदर ये रीड दिखाई हुई है, यहाँ पर इसके अंदर रीड फिक्स होती है। और रीड के दोनों साइड में यहाँ पे शटल बॉक्स है और इस साइड भी शटल बॉक्स है। समझ में आ रहा है? ये लूम विड्थ वाइज पूरा दिखाया हुआ है। तो लूम के जो मेन पार्ट्स हैं, देखो ये हिल फ्रेम्स यहाँ पर दिखाई हुई है। हिल फ्रेम्स के आगे जो पार्ट दिखा हुआ है वही वुडन पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्ले। स्ले का टॉप पार्ट है, फिर नीचे की तरफ भी स्ले होगा, स्ले का पार्ट होगा, और ये स्ले आगे तक एक्सटेंड होती है। तो ये जो शटल बॉक्सेस है ये भी स्ले का पार्ट है, दोनों तरफ शटल बॉक्स होते हैं। तो जब बीटिंग हो रही होती है तो शटल जो है वो शटल बॉक्स के अंदर रेस्ट करती है, और जब शेड कंप्लीट शेड ओपन हो जाएगा तो उस समय ये एक साइड से दूसरी साइड मूव करेगी। तो ये जो सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस किस तरह से होता है? जब आपका ये जब हम हिल फ्रेम को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस शेडिंग मैकेनिज्म, ये शेडिंग मैकेनिज्म दिखाया हुआ है जो कि हिल फ्रेम को टाई करके रखा हुआ, बांध रखा है। जब हिल फ्रेम को ऊपर नीचे करना है तो इसके थ्रू हम उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो जब इसको हम हिल फ्रेम को ऊपर और नीचे करेंगे तो जो एंड्स पर्टिकुलर हिल फ्रेम से पास हो रहे होंगे वो ऊपर या नीचे होंगे, दे विल मूव अपवर्ड और दे विल मूव डाउनवर्ड, एंड इन दैट वे शेड विल बी फॉर्म। जैसे ही शेड बनेगा ये शटल विल मूव फ्रॉम वन बॉक्स टू अनदर बॉक्स और पीछे एक पिक छोड़ते हुए जाएगी, दैट इज नोन एज पिकिंग। और जैसे ही पिकिंग कंप्लीट हुआ, जैसे ही शटल ने फैब्रिक या वार्प को छोड़ा, शटल बॉक्स में आ गई, तो उसको बोलते हैं हम ड्वेल पीरियड। उस समय शटल यहाँ पर रेस्ट करती है एंड रीड मूव्स फॉरवर्ड। उस समय रीड अपना फॉरवर्ड मूवमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ बीटिंग अप मैकेनिज्म। बीटिंग अप मैकेनिज्म रीड को मूवमेंट देगा, रीड विल मूव फॉरवर्ड अप टू फेल ऑफ द क्लॉथ,
और जो लास्ट इंसर्टेड पिक है उसको ये बीट अप कर देगा फेल ऑफ द क्लॉथ तक। फिर रीड जब वापस बैक मूव कर रहा होगा तो वो टाइम आइडियल टाइम नहीं होता है। रीड का फॉरवर्ड मूवमेंट यूज करते हैं हम बीटअप के लिए, और जब रीड बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है तो शेड ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, और रीड जब तक पूरा बैक जाता है, फॉरवर्ड से बैक जाता है, तब तक पूरा शेड ओपन हो जाता है। और जैसे ही शेड ओपन हो जाता है और रीड बैकवर्ड पोजीशन में आ गया है, उसी समय पिक इंसर्ट होता है। फिर जैसे ही पिक इंसर्ट हुआ वापस इसका फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो रीड आइडियल नहीं रहेगी, रीड कंटिन्यूस मूव करेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मूवमेंट में ये लास्ट इंसर्टेड पिक को बीटअप करेगी, और जब ये बैकवर्ड मूव करेगी वापस जब पीछे की तरफ आएगी, तो जब जैसे ही ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी तो उधर हिल फ्रेम्स लिफ्ट और लोअर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हिल फ्रेम लिफ्ट और लोअर होगी तो वार्प थ्रेड्स लिफ्ट एंड लोअर होंगे, तो शेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ये बैक में पहुंचेगी तब तक शेड पूरा ओपन हो चुका होगा, और जैसे ही रीड अपनी बैकवर्ड पोजीशन में आएगी तो उसी समय पिकिंग मैकेनिज्म वर्क करेगा और शटल को एक साइड से दूसरी साइड में थ्रो करेगा। तो शटल जब जैसे इधर है तो इधर आ जाएगी और वापस रीड मूव करेगी, बीटअप होगा। फिर वापस जब रीड पीछे जा रही होगी तो शेड ओपन होगा, शटल इधर से वापस थ्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म। जो पिकर होता है इस पे स्ट्राइक करता है शटल के ऊपर, शटल मूव करती इस साइड से दूसरी साइड में आ जाएगी वापस, और फिर अगेन रीड विल मूव फॉरवर्ड एंड दिस विल अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट शेडिंग, देन पिकिंग, देन बीटिंग। बीटिंग कंप्लीट हुआ, वापस शेडिंग स्टार्ट होगा, पिकिंग होगा, फिर बीटिंग होगा। इन दिस वे कंटिन्यूअसली पिक्स आर इंसर्टेड एंड वी produce a fabric. So this is about the I have taken different diagrams of loom. ये लूम का पैसेज हमने साइड व्यू से एक्सप्लेन किया था, वार्प का पैसेज और डिफरेंट पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया था। इस डायग्राम से वर्किंग समझाया था इसका लूम का, और सारे मोशंस एक्सप्लेन किए थे मैंने, शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, टैक ऑफ, लेट ऑफ एंड ऑक्सिलरी मोशंस। देन हमने इस डायग्राम के हेल्प से लूम का विड्थ वाइज पूरा लूम का डायग्राम, सारे पार्ट्स शो हो रहे हैं। ये भी पैसेज शो कर रहा है शटल लूम के ऊपर, लेकिन विड्थ वाइज लेने से आपको सारा हिल फ्रेम की कितनी विड्थ है, रीड की कितनी विड्थ है, जो रीड का विड्थ है फर्स्ट डेंट टू लास्ट डेंट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वार्प। सिमिलरली जो फर्स्ट वायर से लास्ट वायर है दैट इज ऑल्सो विड्थ ऑफ वार्प। तो स्लाइटली हिल फ्रेम थोड़ी सी बड़ी होगी वार्प की जो विड्थ है उससे। तो हिल फ्रेम की विड्थ भी डिपेंड करेगी वार्प विड्थ पर, रीड की विड्थ भी डिपेंड करेगी वार्प विड्थ पर, या यूं कह सकते हैं कि वार्प विड्थ हमें क्या लेनी, तो उसके अकॉर्डिंग हम रीड लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हिल फ्रेम लेंगे, तो हमें पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो मिल जाएगी। वापस क्लास लेना है या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? सर क्या पता फिर सब जने नहीं आएंगे वापस। अभी नहीं, चलो कल कर लेंगे, ठीक है? तो अटेंडेंस ले लेना, कल करेंगे वापस नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।